A very cheerful morning to one and all, and a warm welcome in the class of accounts. We are continuing with chapter number 6. Today, we will move on to question number 7. And before I start with practical question, let us go through with some theory part. Our today's concept is about sales book. As the rules were for purchase, the same are for this. Only credit sales transactions are to be recorded. Cash sales transactions and asset sales transactions are not to be recorded. Only the items relating to credit sales are to be recorded. That also only the transactions pertaining and relating to goods. Same way, partial cash and partial credit or half cash and half credit transactions are to be treated as fully credit and to be recorded as well. Net amount of sales, that is after deduction of TD, is to be recorded. That means if we have allowed any percentage of trade discount, हम माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद अमाउंट लिखेंगे. Sales book is also in the same way as it was of purchase. Mainly it is bifurcated into two, simple sales book and columnar. Again, columnar is subdivided into two, that is as per the types of goods and as per the goods and expenses. Format सबके same रहेंगे, सिर्फ headings में कुछ changes आएगा. Let us go through with that. The first specimen is of simple sales book. यहाँ पे आपको date लिखना है. यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर नहीं आएगा, नेम ऑफ कस्टमर्स आएगा, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग सेल्स बुक. हमारे जितने भी कस्टमर्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे अपन मेंटेन करेंगे. आउटवर्ड इनवॉइस नंबर यहाँ पे आएगा, आउटवर्ड नंबर जस्ट बिकॉज हम बिल भेज रहे हैं तो बिल नंबर यहाँ पर LF आएगा. एंड लास्टली टोटल की यहाँ पे आपको लिखना होगा टोटल क्रेडिट सेल्स. टोटल का भी टोटल आपको ये कॉलम में फिलअप करना होगा. The next is columnar sales book. Date, name of supplier, outward invoice number, ledger folio. यहाँ तक तो सेम था. As the bifurcations were there in the purchase book, वहां पे आपको टीवी रेफ्रिजरेटर देखने को मिला था, यहाँ पे आपको टेबल चेयर एंड कबर्ड मिल रहा है. डोंट गेट कंफ्यूज. सिर्फ यही वाले ट्रांजेक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है. जिस हिसाब से वो बंदा या बिजनेसमैन डील कर रहा होगा, हम यहाँ पे नेसेसरी चेंजेस लेकर आएंगे. एंड लास्ट में आएगा टोटल अमाउंट. इन सबका टोटल का भी टोटल यहां पे लिखना है और ये टोटल का भी टोटल आपको लास्ट कॉलम में लिखना है. एंड लास्टली वी विल राइट टोटल क्रेडिट सेल्स. द नेक्स्ट वन इज सेल्स बुक एज पर गुड्स एंड एक्सपेंसेस. सो हाफ ऑफ द फॉर्मेट रिमेन्स द सेम. Net amount of goods, railway freight and labor, these are the two types of expenses. And this is the bifurcation for your taxes, that is intrastate supply and interstate supply. इंट्रा में दो होते हैं, CGST and SGST, और यहाँ पे क्या होगा आपका IGST, integrated, and last में total. These are only the specimens I have shown to you people, and practically सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड हैं. So you will be very thorough as and when you will start doing your practical question. So this was all about your sales book. Okay students, now coming on to question number 7 on your page number 152. Let us start with that. From the following transactions prepare sales book in the books of Shri Prabhat Hardware Stores, who is an iron trader. So now we will start with sales book. That's why I have written sales book of Shri Prabhat Hardware Stores. इसका फॉर्मेट कैसा होगा? डेट, नेम ऑफ कस्टमर्स. एज वी आर सेलिंग, हम सेल्स बुक बना रहे हैं तो यहाँ पे जो लिस्ट होगी वो हमारे कस्टमर्स की होगी. हमने उनको बिल दिया होगा, इसके लिए आउटवर्ड इनवॉइस नंबर. बिल हमें पहले मिलता था परचेज के टाइम पे, इसके लिए इनवर्ड, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आउटवर्ड. LF लेजर फोलियो नंबर एंड अमाउंट. एंड लास्ट में आपका आएगा नोट्स, जो आपको यहाँ पर लिखना है. जस्ट ये सिंपल परचेज बुक की तरह सिंपल
सेल्स बुक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द सम. डेट इज 2015, month is June. Let us read transaction dated 1. Sold goods of rupees 20,000 to Neha on 3 months credit and bill number 80 cent. हमने नेहा को क्या किया है, गुड्स बेचे हैं. सो नेहा अकाउंट, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर कितना लिखेंगे हम, 80 of how much we have sent goods of 20,000. Okay, so in the column of amount we will write 20,000. Next is 8th date. Sold goods of 10,000 to Vidhi stores at 5% CD and sent 85 bill number with carriage of 400. हमने goods बेचे हैं विधि को. So विधि अकाउंट, बिल नंबर इज 85, 400 कैरियज भी लगा है. नाउ दिस कैरियज इज टू बी डेबिटेड अगेंस्ट विधिज अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कैश. हम पे कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ विधि. इसके लिए हमने क्या किया, कैश गोज आउट, कैश को हमने क्रेडिट किया है और विधि के अकाउंट को डेबिट किया है. सेल्स बुक में हम ये एक्स्ट्रा का जो कैरियज एक्सपेंस है वो हम शो करेंगे नहीं, बिकॉज गुड्स से रिलेटेड है. गुड्स हमारे कितने के गए हैं, गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ ओनली 10,000 रुपीज. एंड प्लीज पे अटेंशन, यहां पे 5% सीडीपी है. सो 10,000 नहीं आके -10% करेंगे, इट विल कम टू 9,500. 10,000 minus 10%. Okay. Moving further, on 12th date, sold goods of 15,000. अगर आप प्रीवियस चैप्टर्स को याद करें तो मैंने आपको बताया था जो भी ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड नहीं हो उसे हम क्या ट्रीट करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन ही मानते हैं. सो डेट 12 इज अ कैश ट्रांजैक्शन नॉट टू बी रिकॉर्डेड ओवर देयर. नोट्स में लिखेंगे डेट 12, इट इज योर cash transaction. Okay, to be recorded in cash book. Moving further, sold machinery of 10,000 for 3,000 to Crema. ये भी मशीनरी दैट इज asset, गुड्स से रिलेटेड बातें नहीं है, इसके लिए सेल्स बुक में नहीं आएगा. डेट 15, asset sold to be recorded in journal proper. Okay, coming on to date 23. Sold goods of 15,000 to Shimoli at 10% TD and half of the amount paid immediately by Shimoli. Bill number 19. अभी हमने क्या किया है, शिमोली को बेचे हैं गुड्स और 15,000 के गुड्स पे 10% टीडी भी अलाउ किया है और साथ ही साथ उसने हाफ ऑफ द पेमेंट अपन को दे दिया है. हाफ पेमेंट डन है, हाफ पेमेंट क्रेडिट है, पर यहाँ पे हम हाफ कैश हाफ क्रेडिट को फुली क्रेडिट ट्रीट करके नोट डाउन करेंगे. डेट इज 23. इसका नाम आएगा शिमोली. शिमोली को आपने बेचे हैं. बिल नंबर इज 90. So write down 90. 15,000 minus 1,500, that is your TD, comes to 13,500. Okay. Moving further, 28th date. Sold goods of 20,000 to Riddhi at 10% cash discount on cash. Cash discount तभी available होता है जब अपन ने कैश में पेमेंट कर दिया. So again it will be recorded over here. It is your cash transaction. Okay. Moving further, on day 29, Meet placed an order for supply of goods of rupees 15,000. सिर्फ ऑर्डर प्लेस हुआ है, हमने अभी तक गुड्स को सप्लाई किया नहीं है. सो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है ये हमारा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. ओके. मूविंग फर्दर एंड द लास्ट इज
sold goods of 30,000 to Viraj at 10% TD, bill number 95. हमने विराज को गुड्स बेचे हैं 30,000 के गुड्स हमने बेचे हैं कितने में 10% TD पे, तो डेट 30, नाम आएगा विराज अकाउंट, बिल नंबर इज 95। कितने के गुड्स हम बेच रहे हैं 30,000 के 10% माइनस 3,000 कर देंगे, इट विल कम टू 27,000। नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सम यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल क्रेडिट परचेज, नो ये सेल्स का सम है इसके लिए टोटल क्रेडिट सेल्स लिखेंगे। फाइन, एट द एंड हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे और टोटल कम्स टू 70,000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर today's task is this sum number 7 will be your today's task as I have taught you, plus similar type of illustration is given to you. Illustration number 4 will be in your homework. Thank you students.